then you know that matter is exist in a three state. Yes or no? Yes, sir. Yes. Yes, which are that three states? Solid, Solid, liquid, liquid, and and gas. gas. Very good. Solid, liquid, and gas. Yes, what is mean by matter? Yes, what is mean by matter? Yes, matter is a, yes, anything which is occupy the space and have a mass is known as that is the matter. Yes, anything which occupy the space and have mass is known as the matter. Yes, then depending upon the phase of that matter, is that substances are classified as a solid, liquid, and gas. Yes or no? Yes, sir. Hello. Then how you can convert the solid into liquid? Yes, By increasing temperature. very good. By increasing the temperature, yes, by increasing the temperature, you can be convert that is a solid into the liquid. Means if you heat the solids up to that is its a melting point, then solid is converted to the liquid. Yes. Then how you Yes, can sir. convert that is the liquid to the gas? Yes, by heating the Again liquid increasing temperature. again, yes, up to its boiling points. Yes, up to its melting point, if you heat the solids, then solid is converted to the liquid. Up to heat the liquids, yes, liquids heat up to the its boiling point, then liquids are converted to the gas. Yes, then suppose that gases are cool. Yes, means temperature becomes lowered. Yes, cool. Then what happen? Means minus delta. What happen? And if you increase the pressure and decrease the temperature. Yes, this is the cooling means decrease the temperature. What happen? The gas is converted to the liquid, and that process is known as that is the condensation process. बराबर है? And if you cool the liquids means also here increase the pressure and decrease the temperature up to its freezing point, then that liquid is converted to the solid. Yes or no? For example, if you taken the water vapors, and if you cool that water vapors and decrease the temperature by increasing the pressure, then that water vapors are converted to the liquid, that is the water. And then water, if you freeze it in a freezer up to the 0 degree centigrade temperature, that water liquid is converted to the ice, that is a solid. Yes or no? Yes, sir. Then I here discuss the properties of the solid, liquid, and gas. What is the difference between solid, liquid, and the gas? Here you see I draw the gaseous molecules here. Then if you decrease the temperature and increase the pressure, minus, yes, decrease the temperature and increase pressure, what happen? That gaseous molecules are come close to each other like that. Yes, then also you decrease the temperature and increase the pressure, then what happen? You see, what is your observation? Sir, intermolecular forces. Yes, in the gaseous molecule,
intermolecular forces are negligible or absent. I write here, in concern with the intermolecular forces. Intermolecular forces. Yes, in gaseous molecules, that intermolecular forces may be absent or negligible. But in concern with the liquid, yes, intermolecular forces are operative, but that much not strong to hold that liquid molecules as the equilibrium position. Yes, liquid molecule also move from one position to the another position, and therefore, as compared to that is the gases, in a liquids, yes, intermolecular forces are operative, but that is a smaller one. Small intermolecular forces are operative, and therefore that liquid molecules also move from one position to the another position. But in concern with the solid, yes, intermolecular force of attraction is a more or it is a strong one, and therefore in a solids, that atoms, ions or molecules, that is the particles of the solid are always in a fixed position. सॉलिड पे आप देखिए कोई भी सॉलिड सब्सटेंस ले लिया ना, तो उसमें जो कुछ पार्टिकल्स है, पार्टिकल इसका मतलब क्या है, आयंस रहेगा, मॉलिक्यूल्स रहेगा, या वो आयंस एंड मॉलिक्यूल्स रहेगा, लेकिन वो जो है पार्टिकल्स या एटम्स रहेगा, तो वो जो पार्टिकल्स है वो फिक्स पोजीशन में रहता है, कभी वो हिलता नहीं है. बराबर है ना? Yes or no? So why that why that the particles are being fixed in position? Because there is a strong intermolecular force exists between that particles. बराबर है? तो आप देखिए, ये तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के बारे में हो गया. What happen in concern with the shape and volume? मैं यहां पे लिखता हूं, shape and volume के बारे में आपको क्या आपने यस, इन कंसर्न विद द शेप एंड वॉल्यूम के बारे में सॉलिड का क्या रहता है, शेप एंड वॉल्यूम क्या, यस, डिफाइनाइट रहता है. वेरी नाइस. शेप जो एंड वॉल्यूम रहता है इसमें क्या रहता है, डिफाइनाइट रहता है, फिक्स रहता है. लेकिन इन कंसर्न विद द लिक्विड के बारे में क्या रहता है, आप देखिए, मॉडरेट, उसका नहीं, नो नो नो, यू लिसन केयरफुली. यस, उसका वॉल्यूम फिक्स रहता है. फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे देखिए, मैंने 1 लीटर वाटर ले लिया, 1 लीटर वाटर लिए, बराबर है, और मैंने जो शेप ऑफ द बॉटल है, सपोर्ट भी ये मेरा बॉटल है, इसमें मैंने 1 लीटर पानी फिलअप कर दिया यहां तक, बराबर है, ये बॉटल में मैंने ले लिया है. और वही 1 लीटर वाटर मैंने क्या कर दिया है, सपोज टू भी मैंने एक कैन में ले लिया है और कंटेनर में ले लिया है. तो जो वाटर यहाँ पे रहेगा, वाटर ने वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया होगा इन अ कंटेनर, वो यहाँ पे भी 1 लीटर ही रहेगा, यहाँ पे भी उसका जो वॉल्यूम रहेगा 1 लीटर रहेगा. लेकिन इसका शेप जो है, यहाँ पे देखो, उन्होंने क्या कर दिया, वो वाटर ने लिक्विड है, इसके वजह से वो कंटेनर में रख दिया तो कंटेनर का शेप एक्वायर कर दिया. मैंने बॉटल में रख दिया तो बॉटल का शेप उन्होंने एक्वायर कर दिया. तो उसका मतलब क्या है कि लिक्विड हैव अ डिफाइनाइट वॉल्यूम बट नॉट अ डिफाइनाइट शेप. यस और नो? यस सर. यस सर. यहाँ पे मैं लिख सकता है यहाँ पे, यस अथर, अनुष्का जी? हाँ सर. यस, तो यस, लिक्विड हैव अ डिफाइनाइट या फिक्स शेप बट वॉल्यूम ना सर. यस, तो डिफाइनाइट वॉल्यूम बट नॉट डिफाइनाइट शेप. बराबर है? तो गैस का क्या रहेगा? No, both are not defined. Yes, so yes, shape and volume. Yes, gases have neither definite shape nor volume. Correct? Yes or no?
Yes, sir. Yes. Then you see next point, डेंसिटी किसका ज्यादा रहेगा? सॉलिड का ज्यादा रहेगा, Solid. Solid. लिक्विड का ज्यादा रहेगा, या Solid. गैस का ज्यादा रहेगा? Solid. डेंसिटी। Solid. तो डेंसिटी किसका ज्यादा रहेगा? ये इसका हाई रहेगा, इसमें लो रहेगा या मीडियम रहेगा, और उसमें क्या रहेगा? लोएस्ट डेंसिटी रहेगा। देयर आर सम एक्सेप्शनल्स। फॉर एग्जांपल, even though ice is a solid, but density of the ice is a less than the water. It is an exception, but generally, yes, density of the solid is always high as compared to density of the liquid as compared to the gaseous one. Yes or no? Yes, sir. तो यहां पे मैंने ये जो पार्टिकल्स अरेंज कर दिए इन कंसर्न विथ अ सॉलिड, तो आप वो पार्टिकल कैसा है, आपको कैसा दिख रहा है? Closely packed. Yes, that are closely packed. Why that are the closely packed? Intermolecular space कमी है. Yes, but why intermolecular space is less? Because Density जास्त no, है म्हणून. no, 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 no. Because the intermolecular force of attraction between that particles may be atom size or the molecule, वो ज्यादा है, strong है. तो इसके वजह से that particles are near to each other because strong force of attraction. ठीक है? हो sir. Yes. Then go to these are the properties of the solid, liquid and gaseous one. The question will be asked in your board examination like that. Write the properties of the solids. तो आपको क्या लिखने का? ये तीन चार जो प्रॉपर्टी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स इज stronger than as compared to the liquids and the gases. Then solids have a definite shape and definite volume. The density of the solid is always higher than the liquid and the gaseous one. ये आपको पॉइंट लिखने का है. उसके बाद मुझे यहाँ पे जो डिस्कस करने का है, दैट इज द टाइप्स ऑफ द सॉलिड्स. टाइप्स ऑफ सॉलिड्स. तो सॉलिड्स का कितना टाइप्स रहता है? सॉलिड्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ द सॉलिड्स. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द सॉलिड्स? टू टाइप्स. ये टाइप्स ऑफ द सॉलिड्स जो है वो टू टाइप्स है, लेकिन on what basis that solids are divided into the two types? Yes, on what basis? If you understand that why that solids are classified into two types, or what is the reason behind that solids are classified into two types, so yes, you know that in concern with the solids, the particles, maybe atom size of the molecules, are very close to each other because intermolecular force of attraction between that particles is a larger or high. बराबर है? तो ये जो टाइप्स ऑफ द सॉलिड्स है वो किसके बेस पे कर दिया है? तो वो इसके बेस पे कर दिया है अरेंजमेंट ऑफ द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स. ध्यान पे रखने का, ये जो टू टाइप्स ऑफ द सॉलिड्स है बेस्ड ऑन अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स. अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स. बराबर है? तो उसका टू टाइप्स है. मैं यहां पे वो टू टाइप यहां पे लिखता हूं. ये रहेगा सॉलिड, बराबर है? उसका दो टाइप, ये है पहला और ये है दूसरा. ये पहला है क्रिस्टलाइन सॉलिड
और दूसरा है एमॉर्फस सॉलिड। ठीक है, तो इसमें क्या फर्क है, मैंने तो लिख दिया है। ये किसके बेस पे बेस है, क्या, अरेंजमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, अरेंजमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मैं लिखता हूं। कॉन्स्टिट्यूएंट इसका मतलब है उसमें जो पार्टिकल है उसका अरेंजमेंट क्या है, मैं यहां पे लिखता हूं। ठीक है, आप देखिए ये है रेड कलर सर्कल्स, ध्यान पे रखने का, ये है रेड कलर सर्कल्स, रेड कलर सर्कल्स, रेड कलर सर्कल्स, यहां पे रेड कलर सर्कल है, आप देखिए। फिर मैं यहां पे ब्लू कलर सर्कल्स है, यहां पे ब्लू कलर है, यहां पे भी ब्लू कलर है, यहां पे 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 भी ब्लू कलर है, यहां पे ब्लू कलर है, यहां पे ब्लू कलर है, यहां पे भी ब्लू कलर है, यहां पे ब्लू कलर है, यहां पे ब्लू कलर है, यहां पे भी ब्लू कलर है, यहां पे ब्लू कलर है, यहां पे ब्लू कलर है। What is the your observations? Sir, regular and geometric arrangement. वेरी गुड, वेरी नाइस। यहाँ पे देखो रेड कलर ब्लू कलर, रेड कलर ब्लू कलर, रेड कलर ब्लू कलर, दैट अरेंजमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर रेगुलर। ठीक है, मैं यहाँ ध्यान पे आ गया। Oh, sir. हेलो, Hello Rudra, how are you? Hope you are good. अर्पिता, अर्पिता आपका आवाज आ रहा है। या ये ना क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में क्या रहता है, अरेंजमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है वो रेगुलर है और पीरियोडिकली अरेंजमेंट है, पीरियोडिकली वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, यस इन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स its constituent particles are arranged regularly and periodically। ठीक है, हेलो, Yes, sir. yes or no, you understand it or not understand? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में जो कुछ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का अरेंजमेंट है वो रेगुलर है। आप देखिए इसमें, आप पैटर्न देखिए तो रेड ब्लू रेड ब्लू रेड ब्लू लाइक है, बराबर है। और यहाँ पे मैंने भी रेड लिख दिया, आप देखिए यहाँ पे रेड लिख दिया, यहाँ पे रेड लिख दिया, यहाँ पे दे दिया, यहाँ पे दे दिया। तो आप पैटर्न देखिए, जो पैटर्न है एक रेड होने के बाद दूसरा ब्लू है या नहीं? Oh, sir. yes, that pattern is a regular pattern। yes, और वो कोई भी क्रिस्टलाइन सब्सटेंस लेंगे, आप लेंगे उसमें एटम्स रहेगा, मॉलिक्यूल्स रहेगा या आयंस रहेगा, वो आयंस जो है, मॉलिक्यूल्स है या एटम्स है, वो रेगुलर अरेंजमेंट हो गया ना तो वो क्रिस्टलाइन रहेगा। ठीक है, Oh, sir. नेक्स्ट है एमॉर्फस सॉलिड्स। उसमें क्या है देखिए, ये रेड है, बाद में रेड ही है, उसके बाद ब्लू है, उसके बाद रेड आ गया, उसके बाद दो ब्लू आ गया या तीन आ गया, उसके बाद नीचे यहां पे ब्लू आ गया, यहां पे फिर रेड आ गया, फिर इसमें ब्लू आ गया, फिर रेड आ गया,
फिर यहाँ पे रेड आ गया, फिर यहाँ पे ब्लू है, फिर यहाँ पे रेड आ गया. व्हाट इज योर ऑब्जर्वेशन? Irregular Random arrangement. arrangement of यस, particles. यहाँ पे यस, कभी कभी यहाँ पे देखो ब्लू रेड है, यहाँ पे देखो रेड ब्लू रेड है. इस कभी कभी उसमें शॉर्ट रेंज में रेगुलर अरेंजमेंट है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स दैट पार्टिकल्स आर अरेंज इन amorphous solids आर irregular one. Yes, arrangement of the constituent particles are irregular. बराबर है? Yes, sir. तो मैं यहाँ पे लिखता हूं, पहला जो उसका प्रॉपर्टीज है, कैरेक्टरिस्टिक है, द अरेंजमेंट ऑफ constituent particles are regular. Yes, or maybe you write that sentence like the in a crystalline solid, the regular arrangement of the constituent particles. Yes, for long range. बराबर है ना? यहाँ पे देखो पूरा सॉलिड में वो रेगुलर अरेंजमेंट है. तो यहाँ पे आप लोग क्या लिख सकते हैं? The arrangement of constituent particles are irregular and short range. आप देखिए, आपको मैं एग्जांपल देता हूं. जो विंडोज ग्लास रहता है, ग्लास इज अमॉर्फस सॉलिड, उसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रहता है उसका अरेंजमेंट जो है वो रेगुलर नहीं रहता है. ठीक है, तो वो अमॉर्फस है. लेकिन आपके घर में जो सॉल्ट है या शुगर है वो क्रिस्टलाइन है, क्योंकि उसमें शुगर में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या है, मॉलिक्यूल्स है, लेकिन उसका अरेंजमेंट रेगुलर है. और आपने कंसीडर किया सोडियम क्लोराइड सॉल्ट जो है उसमें Na+Cl-Na+Cl-, ये जो अरेंजमेंट है आयंस का वो रेगुलर है. तो सोडियम क्लोराइड एंड द शुगर इज एग्जांपल ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड. ग्लास और रबर जो है वो एग्जांपल्स ऑफ द क्या है, अमॉर्फस सॉलिड के एग्जांपल्स है. तो ये अरेंजमेंट ऑफ द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है वो रेगुलर होने के बाद वो प्रॉपर्टी के ऊपर, वो सॉलिड के प्रॉपर्टीज के ऊपर क्या असर होता है, और अरेंजमेंट इरेगुलर रहता है तो उसके प्रॉपर्टी के ऊपर क्या असर होता है वो हम लोग यहाँ पे देखें. इफ द अरेंजमेंट ऑफ द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स वो जो है वो रेगुलर रहेगा ना, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट आप लोग देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे सॉलिड्स है, तो सॉलिड्स का इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी इज मेल्टिंग पॉइंट. तो हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट लेंगे ना, वो क्रिस्टलाइन सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट रहेगा शार्प. तो these solids means crystalline solids have sharp melting point. ध्यान पे रखने का, ये उसका मेल्टिंग पॉइंट आपने मेजर कर दिया तो वो शार्प रहेगा. yes, that solids always melt at a definite temperature. बट आपने अमॉर्फस सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट आपने मेजर कर दिया तो अमॉर्फस सॉलिड्स जो होता है that never is that is the have a sharp melting point. Yes, amorphous solids have not sharp melting point. उसको शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं रहता है. तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कभी कि आपने रबर मेल्ट होते हुए या रबर आपने फायर कर दिया तो पहला क्या होता है मालूम है, वो रबर जो है हीट करने के बाद थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है, देन थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है, देन थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है, एंड देन दैट विल बी कन्वर्टेड टू द लिक्विड. तो वो डायरेक्टली एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर में सॉलिड इज कन्वर्टेड टू द लिक्विड, ऐसा नहीं होता है. बराबर या नहीं? आपने कभी ऑब्जर्व किया है? यस, No, sir. यस, यू ऑब्जर्व इट. या ग्लास, आप कभी आप ग्लास ले लीजिए और थोड़ा सा उसके हीट कर दीजिए,
that will be not directly converted to the liquid. वो पहिला सॉफ्ट हो जाएगा, मराठीमध्ये मऊ होतं म्हणतात, मऊ होईल आणि मग तो वितळेल. Yes, so that amorphous solids have not a sharp melting point. They melt gradually. वो धीरे धीरे मेल्ट हो जाएगा, ग्रेजुअली, ओवर अ टेम्परेचर इंटरवल. टेम्परेचर इंटरवल इसका मतलब है ज्यादा टाइम लगेगा वो मेल्ट होने के लिए. ठीक है. उसका Yes, sir. या उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, आप देखेंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट. वो प्रॉपर्टी क्या है? आइसोट्रॉपिक एंड अनिसोट्रॉपिक. मैं यहां पे आपको दिखाता हूं. आप देखिए यहां पे मैंने एक लाइन ड्रॉ करता हूं. आप देखिए वो लाइन पे क्या, एक ग्रीन कलर से मैं यहां पे देखो ऐसा लाइन ड्रॉ कर दिया. तो आप देखिए एक रेड सर्कल आता है, ब्लू आता है, रेड ब्लू. ऐसा लाइन ड्रॉ कर दिया तो भी रेड ब्लू आता है, बराबर है. तो ये डायरेक्शन से आपने उसका प्रॉपर्टीज मेजर कर दिया, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, तो वो सेम आ जाएगा, क्योंकि अरेंजमेंट जो है वो कैसा है, सेम है, Na+Cl-Na+Cl-. लेकिन आप ऐसा देखिए, ये डायरेक्शन में प्रॉपर्टी मेजर कर दिया. आप देखिए खाली इसमें रेड कलर का ही सर्कल्स आता है, मे यू कंसिडर दैट सोडियम आयंस. और दूसरा मैंने यहां पे लाइन ड्रॉ कर दिया, तो आपको क्या दिखता है, खाली उसमें ब्लू ही आता है, बराबर है ना. हो सर. तो जो डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज है, डायरेक्शनल नेचर में रहता है, वो कौन से डायरेक्शन में हम लोग मेजर करते, वो प्रॉपर्टीज को हम लोग बोलते हैं डायरेक्शनल प्रॉपर्टी. तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में आपने वो प्रॉपर्टी मेजर कर दिया इन पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो अलग अलग वैल्यू आ जाएगा. उस नेचर को हम लोग बोलते हैं अनिसोट्रॉपिक. Yes, that means crystalline solids shows different values of the same property if we measure in a different direction. सर म्हणजे आपण आधी केलं तेव्हा ब्ल्यू नंतर रेड असं आलं आणि नंतर केलं तेव्हा फक्त रेड फक्त ब्ल्यू आलं म्हणून. त्याच्या इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव्हिटी बदलली. आता मी या डायरेक्शनला घेतली इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव्हिटी, या डायरेक्शनला घेतली तर रेड ब्ल्यू अशी अरेंजमेंट येते. मग या डायरेक्शनला मेजर केली काय आणि झेड ऍक्सिसला मेजर केली काय आणि एक्स ऍक्सिस, सपोर्ट बी हा एक्स ऍक्सिस आहे आणि हा झेड ऍक्सिस आहे. मी दोन्ही बाजूला मेजर केली तर मला सेम प्रॉपर्टी येणार, कारण अरेंजमेंट ऑफ दॅट कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इज सेम. लेकिन मैंने ये डायगोनल प्रॉपर्टीज मेजर कर दिया तो वो मुझे अलग आ जाएगा एज कंपेयर टू दैट इज अ जेड डायरेक्शन और एक्स डायरेक्शन. उसका मतलब क्या है, इफ यू मेजर द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट क्रिस्टलाइन सॉलिड इन अ डिफरेंट डायरेक्शन, yes, you particular property, that is electrical conductivity, you measure in a different direction, that shows a different value. Why? Because of the arrangement of the constituent particles is regular. And if you taken the direction, then that direction, that arrangement is a different, in a different direction. Therefore, that shows the different arrangement is regular, but that is the different one. And therefore, such a solids are known as, that is the anisotropic in nature. Anisotropic इसका मतलब क्या है, the proper value of the physical particular physical property are different in a different direction. ध्यान पे आ गया? हो सर. या और जो अमॉर्फस सॉलिड्स रहता है ना, वो आइसोट्रॉपिक रहता है. आइसोट्रॉपिक इसका मतलब है इफ यू मेजर, ये डायरेक्शन में आपने मेजर कर दिया वैल्यू, ये डायरेक्शन में मेजर कर दिया, या ये डायरेक्शन में आपने मेजर कर दिया, yes, of the properties you measure in a different direction,
that always shows same value, such a properties is known as isotropic. Yes, and such a solids are known as that is isotropic solid. तो हमारे पास सॉलिड्स का आपने कोई भी डायरेक्शन में आपने प्रॉपर्टीज मेजर कर दिया तो उसका प्रॉपर्टी सेम आता है, इसका मतलब है हमारे पास सॉलिड्स आर आइसोट्रॉपिक इन नेचर। ठीक है, तो उसका एग्जांपल मैं यहां पे देता हूं। एग्जांपल क्या रहेगा आपको मालूम है, कोई भी मेटल जो है, कॉपर, सिल्वर, देन गोल्ड, प्लैटिनम, आयरन, वो जो जितना भी सॉलिड्स है मेटल्स, वो रेगुलर अरेंजमेंट का है। या आप देखेंगे शुगर, ये सॉलिड, देन NaCl, ये जो है वो दैट इज ए क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो जो एग्जांपल्स है हमारे पास सॉलिड का क्या रहेगा, रबर, ये ग्लास, प्लास्टिक्स, ये सब जो रहेगा वो हमारे पास सॉलिड का एग्जांपल्स है। सर ते प्लॅटिनम लिहिलंय ना? या Pt मीन्स प्लैटिनम, Fe मीन्स ओके आयरन। सर। या तो आप देखिए ये एग्जांपल्स है। अभी आपको जो बोर्ड का जो क्वेश्चन पेपर रहेगा, बोर्ड का एग्जाम रहेगा, उसमें आपको क्वेश्चन क्या आ जाएगा, राइट द डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमॉर्फस सॉलिड। तो आपको ये 2 मार्क के आ जाएगा क्वेश्चन। तो आपको 4 डिफरेंस लिखने का है, ये 3 उसका डिफरेंस है, चौथा एग्जांपल रहेगा ये लिखने का, डिफरेंस लिखने का, या डिस्टिंग्विश बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड द अमॉर्फस सॉलिड, ऐसा आ जाएगा। तो ये आपको मालूम हो गया क्वेश्चन कैसा जाएगा बोर्ड पे। ये पहला रहेगा, डिस्टिंग्विश बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमॉर्फस सॉलिड, ठीक है, या डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमॉर्फस सॉलिड, 2 मार्क के लिए आ जाएगा। या क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा, राइट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, या क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा, राइट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अमॉर्फस सॉलिड। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या रखेंगे, लिखेंगे ये 4 जो प्रॉपर्टी दिए है ना, 1 2 3 एंड उसका एग्जांपल, वही लिखने का, और अमॉर्फस सॉलिड का ये 4 प्रॉपर्टीज लिखने का, 3 प्रॉपर्टीज एंड चौथा एग्जांपल लिखने का। तो ये प्रॉपर्टीज कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा। उसके बाद नीट 2 मार्कला विचारणार ना? येस, 2 मार्क्ससाठी। नीट एंड IIT जी एग्जाम में कौन सा टाइप का क्वेश्चन आएगा, या MSc CET में, वो देखेंगे। यहां पे देखिए क्वेश्चन नंबर मैं लिखता हूं 1, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्रिस्टलाइन सॉलिड, A NaCl, B sugar, C MgCl2, D प्लास्टिक्स। क्या रहेगा आंसर आपका? ABC। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या रहेगा, NaCl रहेगा, शुगर रहेगा, MgCl2 रहेगा। प्लास्टिक तो क्रिस्टलाइन सॉलिड नहीं है। और ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अमॉर्फस सॉलिड, प्लास्टिक। यस, इसके वजह से अमॉर्फस आ गया, अमॉर्फस तो क्या रहेगा, प्लास्टिक आंसर रहेगा। ठीक है, हो सर। या तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहां पे दूसरा क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड इज आइसोट्रोपिक, A
NaCl, B CaCl2, C sugar, D glass. D glass. D glass. Yes. Then I ask the question. Next, question number 3. In which type of solid have sharp melting point? A. Amorphous solid. B. Crystalline solid. C. Both A and B. And D. None of these. Option B, crystalline. Yes, option B is correct. That is a crystalline solids. ये टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा. ध्यान पे आ गया? हो सर. क्या क्वेश्चन आ जाएगा ऐसा? In which of the type of the solid have that is the anisotropic in nature? वो रहेगा amorphous solid, crystalline solid, both A and B are the correct, and D none of these रहेगा. और ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा in which of the following is incorrect statement. ध्यान पे रखने का. In which of the following is incorrect statement for crystalline solids? तो पहला मैं बोलता हूं is in a crystalline solids the constituent particles are arranged regular manner. B. Crystalline solids have a sharp melting point. C. Crystalline solids are anisotropic in nature. D. Crystalline solids is isotropic in nature. D. Option D. ठीक है, कोई डाउट है आपको इसमें? No, sir. No, sir. या तो नेक्स्ट आगे जाएंगे. Yes, sir. या कोई भी डाउट रहेगा तो आप पूछ लीजिए, तो आपको वो कंसेप्ट अंडरस्टैंड हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट हम लोग जाएंगे